Second year के अंदर I got the PPO, pay my own fee, own semester fee, and that was a big thing for me. But I started doing internship and that too multiple internship. जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी आगे. खेलने से पहले सब पहले आईडी डालते थे एंड देन बहुत क्लस्टर हो गया था व्हाट्सएप ग्रुप. तो व्हाट आई डिड सिंस आई वाज एक्सप्लोरिंग कोडिंग, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर सब एक बार डिटेल्स पुट करेंगे एंड देन इफ आई वांट टू प्ले लेट्स से विद हर्ष, तो मैं हर्ष का नाम सर्च करूँगा वेबसाइट पे एंड उसके सारी डिटेल्स आ जाएगी. बट फर्स्ट ईयर के अंदर इट बिकेम वेरी 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 लो बिकॉज जो मैंने एक्सपेक्ट करा था ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. Hello. I'm your host Harsh Chaurasia and I welcome you to the 5th episode of Before We Go by Sampoon, where we interview graduating undergrads of IIT Bombay and ask them about their journeys, their stories, their struggles and their victories. And today we have a very special guest here. We have Ishu Kohli, a 4th year undergrad in the Department of Chemistry and my best friend in the institute. Ishu, would you like to introduce yourself better? Shed some light on yourself. Right. Hi, hello guys. I am Ishu and I'm currently in my 4th year, graduating in the next few months, and I'm in chemistry department right now, and also I'm the founder of Eshwe over here. Yeah, so we'll be going into our journey, my journey and my story with the episode, and hopefully you'll like it. Starting off on a very optimistic note. Nice. Cool. So I'll ask the very basic and a very important question right here, that we are from the COVID batch. Nothing to celebrate about, but still. Yes. So our first year was online and in 2020. And still a lot of us, almost all of us came here with a lot of expectations for the institute, a lot of hopes with our degree, maybe a job even after some time. And how did those expectations pan out for you? How did you find the reality to be differing from what your expectations of IIT Bombay were? Okay, in my case, the meme of expectation versus reality was absolutely true. Expectations were बहुत ज़्यादा high, but first year के अंदर it became very 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 low because जो मैंने expect करा था ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. It was most of because the campus जो environment यहाँ पे मिलता है, ecosystem यहाँ मिलता है, वो हमको नहीं मिल रहा था. तो इट वॉज जस्ट अकेडमिक्स जो हम 11-12 में करते आ रहे थे, तो ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं मिल रहा था हमको फर्स्ट ईयर के अंदर. तो पूरा ही एक्सपेक्टेशन एकदम ग्राउंड टू जीरो, बिलो जीरो हो गया था. तो स्टार्टिंग तो बहुत ख़राब रही थी एंड कोविड-19 बैच बोल के ऐसा कर्स्ड बैच बना दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हमको कैंपस नहीं मिलेगा तो कुछ एक्सपोजर नहीं मिलता. तो इस वजह से काफ़ी ख़राब एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी रहा मेरा. तो स्टिल फर्स्ट ईयर में Ishu was a very active member of our chemistry batch. He went for the CR position and let's not comment on who was more deserving, but yeah, so Ishu went for the CR position. He eventually became the CR in the second year, and then he made a lot of presentation, and I think he was also an unofficial CR for us in our first year as well. So would you like to let our viewers in on your first year experiences, letting aside the reality versus एक्सपेक्टेशंस? हाँ, ऑन द सेम लाइन एक्सपेक्टेशन तो लो थी, बट मुझे कुछ ना कुछ नया करना था, क्योंकि मैं तो एक्सप्लोर करने आया था IIT बॉम्बे. एंड तो स्टार्टिंग ऐसे हुई कि आई वांटेड टू बी on the other side. Since school के अंदर I was very very introvert kind of person, so on the opposite side I wanted to explore, socialize with people and become an extrovert kind of person, more like ambivert. तो वो I started doing and I started actively participating in group discussions in WhatsApp groups, क्योंकि वही हमारा socialization का वे था. हम मिल तो नहीं सकते थे, तो WhatsApp groups पे ही हम अपने यही socialization करते थे. and I started taking on initiatives, क्योंकि अपना MA 109 करके एक कोर्स होता है, तो अब तो बंद हो गया है, वो मर्ज कर दिया गया है. तो वो कोर्स होता था, उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी. देन आई केम अप विद एन इनिशिएटिव कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट एंड सबको एक साथ बुलाते हैं. कोई एक बच्चा होगा जिसको सबसे अच्छा आता होगा, उसको बुलाते हैं एंड ही विल गाइड अस थ्रू कैसे करना है. तो मैंने वो मीटिंग अरेंज करी, सारे बच्चों को एक साथ बुलाया, जूम मीटिंग थी एंड बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ था. एंड वो काफ़ी अच्छा रहता है इनिशिएटिव. एंड उसी के बाद से फिर ये कैंपेनिंग चालू हो गई थी, इशू फॉर द CR, इशू फॉर CR. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न, कुछ तो इलेक्शन का चक्कर में फर्स्ट ईयर CR तो नहीं बन पाया, बट लेटर ऑन सेकेंड ईयर के अंदर CR बन गया था. कितने वोट से रहे थे फर्स्ट ईयर में? 2 या 3, हाँ ऐसे कुछ वोट से ही रह गया था. बट पूरा ऐसे मिली जुली भगत थी, कुछ तो था जो डिसाइडेड था ऑलरेडी, हमने करा था. बट हाँ, ये हुआ था फर्स्ट ईयर में. एक और चीज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करी मैंने, वो थी कोडिंग. तो वो मेरा एक ऐसे इंटीग्रल पार्ट बन गया कोडिंग. एंड ऐसे स्टार्ट हुई थी कोडिंग. उसमें भी मैंने एक इनिशिएटिव लिया था. तो एक व्हाट्सएप ग्रुप था अबाउट वैलोरेंट, गेमिंग के अंदर अगर पीपल हैं तो उनको पता होगा वैलोरेंट क्या है. तो आई वाज आल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व गेमिंग के अंदर, क्योंकि और कुछ तो करना नहीं था. एकेडमिक्स होता था मॉर्निंग टू इवनिंग एंड देन उसके बाद पूरा टाइम में गेमिंग करता था. एंड कभी कभी तो मॉर्निंग क्लास स्किप करके भी गेमिंग करता था मैं बहुत बार. तो अभी हमारी कम्युनिटी बन गई थी गेमिंग की. अब वहाँ पर हम गेम्स खेलते थे बहुत ज़्यादा, वैलोरेंट लगातार ऐसे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे बहुत गेम्स खेलते थे. अब वहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मतलब सभी बच्चे फेस कर रहे थे. वो होता है
इफ़ यू वांट टू प्ले विद योर फ्रेंड, तो आई में न्यू फ्रेंड्स बने थे गेमिंग वाले, तो उनके साथ खेलने के लिए यू नीड टू ऐड देम एज अ फ्रेंड। उनके एक आईडी होती है, टैगलाइन होती है, वो डिटेल तुमको पुट इन करनी पड़ती है गेम के अंदर, तब तुम ऐड फ्रेंड कर सकते हो। तो सबके यूनिक आईडी होती है। तो अब क्या होता था व्हाट्सएप ग्रुप पे, जब भी हमको खेलना होता था ना एंड वी वांटेड टू प्ले टुगेदर, तो हमें बार बार वो आईडी सबसे मांगनी पड़ती थी कि अपनी आईडी बता दो एंड आई विल पुट इन द गेम एंड आई विल ऐड यू एज अ फ्रेंड। तो ये बार बार करने से बहुत रेपिटेटिव प्रोसेसर हो गया था एंड सब बार बार खेलने से पहले सब पहले आईडी डालते थे एंड देन बहुत क्लस्टर हो गया था व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट आई डिड, सिंस आई वाज एक्सप्लोरिंग कोडिंग, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर सब एक बार डिटेल्स पुट करेंगे एंड देन इफ़ आई वांट टू प्ले लेट्स से विद हर्ष, तो मैं हर्ष का नाम सर्च करूँगा वेबसाइट पे एंड उसके सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था एंड तब से ही लोग जाने लग गए थे कि हाँ ईशू कोई तो बंदा है जिसने वेबसाइट बनाई है एंड वेबसाइट बनाता है बंदा। तो फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आता है एंड उसमें वो काफ़ी एक्सपोजर मिला था, नॉट ओनली कि अपने डिपार्टमेंट में लिमिट रह गया मैं, बट ओवरऑल पूरे इंस्टी के अंदर आई गॉट थोड़ा सा एक्सपोजर एंड गॉट टू नो लॉट्स ऑफ पीपल। सो हाँ, फर्स्ट ईयर रफली ऐसे निकला। नाइस, आई रिमेंबर दैट वेबसाइट। ईशू यूज्ड टू सेंड मी उसके स्क्रीनशॉट्स की, देखो यूआई अच्छा लग रहा है कि नहीं, एज इफ आई नो हाउ अ गुड यूआई इज सपोज टू लुक लाइक। बट या, फर्स्ट ईयर वाज फन। देन वी हैड 3 हफ्ते के समर वेकेशंस। व्हाट डिड यू डू इन दैट 3 हफ्ते के समर वेकेशंस फर्स्ट ईयर के बाद? सुनने से लग रहा है 3 महीने से 3 हफ्ते हो गए थे पहले तो समर वेकेशन एंड पूरा श्रिंक हो गया था, तो फिर ऐसा कुछ करने को ज़्यादा मिला नहीं है, तो बस घूमने गया इधर उधर एंड मोस्टली रिलेटिव्स के घर गया था घूमने एंड वो आईटी का टैक्स ऑफ करना था, आईटी बॉम्बे, तो वो करा बहुत ज़्यादा। बट उसके बाद जो मेरा मेन फोकस था वो था कि मेरी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो विच आई डिड थ्रू वेब डेवलपमेंट। मेरा वेब डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, लीन ऑन, तो मैं उसी के अंदर आई कैरिड फॉरवर्ड एंड बहुत ज़्यादा उसके अंदर आई वेंट डीप। तो उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि हाउ टू गेट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वो सब आई वाज रिसर्चिंग इन माय समर during the summer only. Cool. And then we enter second year. Issue ka tenure as CR and issue ka tenure as Insight Web convener, right? Yes. And if I remember correctly, आप September 2021 में कैंपस आ गए थे, राइट? ऑसम. लेट्स नॉट गो इनटू कि कैसे आ गए थे, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कैसे आए थे, बट स्टिल हाँ, स्टार्ट सेकेंड ईयर से एंड यू कैन मतलब कवर द एंटायरिटी ऑफ द सेकेंड ईयर एक साथ. लेट्स नॉट गो सेमेस्टर वाइज. पूरा सेकेंड ईयर कैसा रहा? हाउ डिड योर सेकेंड ईयर लाइक चेंज योर मेंटालिटी टूवर्ड्स और रादर एटीट्यूड टूवर्ड्स कोडिंग, एकेडमिक्स, इंस्टी PORs, इंस्टी जनता इन ऑल राइट. तो गोइंग बैक टू द अगेन सेम क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, यहाँ पे हिट करा वो कि जब मैं कैंपस आया तो एक्सपेक्टेशन जो थी रियलिटी उससे मीट करने लग गई थी, क्योंकि जब कैंपस आया तो बहुत सारी चीज़ें, पहले तो बहुत बड़ा कैंपस, इतना ज़्यादा बड़ा कैंपस आई हैव नेवर सीन बिफोर इन एनी ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट. तो एंड इसमें वेराइटी पूरा इकोसिस्टम है, इट्स लाइक लेक वगैरह एंड देन यू हैव हिल, यू हैव रेजिडेंशियल एरिया एंड अकेडमिक एरिया एज वेल, तो पूरा एक गुड कॉम्प्लेक्स, तो वो एक्सप्लोर करने को मिला. एंड अब जब मैं इंस्टी आ गया था लोगों को जानते थे, बट कुछ पहले बात इंस्टी इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट का लिंगो है तो इंस्टीट्यूट को एब्रीविएट करके इंस्टी बोलते हैं, तो इफ़ आई रेफर इंस्टी दैट मीन्स इंस्टीट्यूट. तो इंस्टी में जब आए तो कुछ बच्चे आ गए थे ऑलरेडी एंड कुछ बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे थे क्योंकि कोविड बैच था. तो उसमें जिनको जानता था कुछ आ गए थे, कुछ नहीं आए थे, तो नए लोगों से भी मिलने को मिला एंड नए लोगों से इंटरेस्ट शेयर हुआ कि इसको वेब डेवलपमेंट पसंद था, मेरे को वेब डेवलपमेंट पसंद था, तो वी शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड उसके साथ साथ जैसे करते गए आई गॉट इनटू वेब डेवलपमेंट एज अ कन्वीनर. तो इनसाइट के अंदर मेरा एक दोस्त था एंड वो भी उसमें अप्लाई करा था, मैंने भी उसमें अप्लाई करा था, क्योंकि किसी सीनियर ने बताया था कि इफ़ यू वांट टू परस्यू कुछ भी तो POR एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. एंड बहुत ऐसे हवा बना हुआ है POR का कि POR यू नीड टू कैरी, अदरवाइज़ तुम्हारा इंस्टी लाइफ के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम होगी, एंड इस POR है तो तुम्हारी लाइफ ज़्यादातर सॉर्ट रहेगी. तो मैंने भी इसी के अंदर पढ़ा कि लेट्स गो इनटू POR. एट POR मोस्टली मेरे को वेब के लिए चाहिए थी, क्योंकि मेरा वेब में इंटरेस्ट था. तो वेब में आई अप्लाइड एट 2 places विच वाज UGAC एंड द सेकेंड वाज इनसाइट. एंड दोनों में आई कम्प्लीटेड द असाइनमेंट, गेव द इंटरव्यू, दोनों काफ़ी अच्छे रहे थे एंड फॉर्चुनेटली आई क्रैक्ड बोथ ऑफ हम. एंड उसके बाद चॉइस होनी थी इनसाइट में या फिर UGAC में, तो दे वर गिविंग कि या तो इस इधर या फिर इधर. तो आई डोंट नो क्यों मैंने, बट इनसाइट मैंने चूज़ करा. आई थिंक आई शुड हैव, नहीं मैं नहीं बोलूँगा बट इनसाइट चूज़ करा मैंने एंड वहाँ पे वेब कन्वीनर बना, मेरे दोस्त मिले, पूरे एक नई टीम मिली, टीम के अंदर काम कैसे करते हैं वो चीज़ें पता लगी. तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा. पूरा टेन्योर मेरा बहुत अच्छा लगा था. एंड जब मैं ये कन्वीनरशिप अपनी एक्सपीरियंस कर रहा था, एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप सेकेंड ईयर के अंदर काफ़ी कम लोग करते हैं, बट आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप एंड दैट टू मल्टीपल इंटर्नशिप्स. तो आई लैंडेड फर्स्ट इंटर्नशिप व्हेन आई वाज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स
द विंटर एंड उसके बाद समर इंटर्नशिप्स का सीज़न आ रहा था सेकेंड ईयर के अंदर ही. I did 2 more internships. So in total I did 3 internships at the same time and it was तीनों ही सेम ही टॉपिक के ऊपर थी. दैट वाज वेब डेवलपमेंट. तो मेरे वेब डेवलपमेंट का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था एंड जैसे जैसे मेरे सेकेंड ईयर एंड हो रहा था आई लिटरली बिकेम बहुत एक्सपर्टीज़ इन वेब डेवलपमेंट बेस. मतलब फ्रेमवर्क्स तो आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, तो बहुत अच्छा मेरा गुड ग्रैप्स आ गया था वेब डेवलपमेंट के ऊपर. अब जब एंड हो रहा था मेरा सेकेंड ईयर तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मेरी लाइफ में आई एंड उसके आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल, क्योंकि उसके बाद से मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो व्हेन आई वाज रीचिंग द एंड ऑफ माय सेकेंड ईयर आई गॉट अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट. तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट के अंदर आई हैड टू क्रिएट अ वेबसाइट विच वाज ऑन React.js. तो React.js जब मैं स्टार्ट ही कर रहा था एक्सप्लोर करना, अब मेरे को ज़्यादा नहीं आता था बट आई स्टिल टुक द प्रोजेक्ट कि मैंने बोल दिया उनको कि हाँ मुझे आता है, बट ओवरऑल मेरे को पूरा नहीं आता था. बस मैंने बोल दिया था कि हाँ मेरे को आता है नाल डू. अब मैं साथ साथ सीखते सीखते वो प्रोजेक्ट कर रहा था एंड वो बहुत अच्छी लर्निंग थी क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा था एंड वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एंड आई सक्सेसफुली कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. सो आई अर्न द मनी जो मैंने इंटर्नशिप के अंदर 1 महीने में पैसा अर्न करा था. आई अर्न दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी इन जस्ट 4 days जस्ट डूइंग फ्रीलांसिंग. दैट वाज अ ह्यूज, जैसे मेरी थिंकिंग के अंदर पूरा चेंज आया कि दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई कैन डू. तो जब सेकेंड ईयर एंड हो रहा था I earned a lot of money and I was able to pay my own fee on the semester fee, and that was a big thing for me क्योंकि when you enter college and if you think that you will be able to fulfill your own fees and pay for your own tuition fee and all the kind of fee that you have in your institute, so basically अपने पैसों पे ही खुद पढ़ना. So that was the kind of achievement I achieved in the end of my second year. So that was the पूरा entire of second year. So you did 3 internships in your second year and some freelance projects. This includes the FCC wala, right? FCC is the first freelancing project. FCC was the first freelance project. If you want to know what FCC is, issue को DM करके पूछ लेना. I can't say it on camera. Anyway, yeah. Then we had पहला proper summer vacations after, मतलब since coming to IIT Bombay, which was in 2022, 3 months complete. क्या किया उसमें? Still internships या exploring something else as well, या फिर very laser focus on web development? या मेरा इसी ओरिएंटेशन के अंदर आता. तो जब मेरा ये वाला समर वेकेशन आया था तो इसमें क्या कराते हैं यूजुअली कि थर्ड ईयर जो इंटर्न आने वाली है ना, तो विंटर पे उसकी तैयारी चालू करा देते हैं. तो मेरा ऐसा कुछ फोकस नहीं था थर्ड ईयर इंटर्नशिप्स पे. तो सेकंड ईयर जो मेरा मन था, पहले तो इंटर्नशिप्स कंप्लीट करा था मैं, वो चल ही रहा था, बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड सिंस फ्रीलांसिंग मैंने चालू कर दिया था. तो इसके अंदर आई वांटेड टू डू समथिंग इनोवेटिव. कुछ तो मेरे को न्यू करना था कि हाउ कैन आई लेवरेज दिस फ्रीलांसिंग एंड मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट. तो मेरा उस तरफ डायरेक्शन चालू हो गई थी. तो आई वाज थिंकिंग ऑफ सम न्यू थिंग्स, बीट एंटरप्रेन्योरियल, बीट समथिंग टू सॉल्व सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो फ्रीलांसिंग मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिव हो गया था. मेरी फ्रीलांसिंग खत्म हुई, इंटर्नशिप खत्म हुई थी मेरी, एंड देन आई पूरा फोकस मेरा फ्रीलांसिंग के ऊपर हो गया था. एंड इंटर्नशिप मेरी उसके बाद से लेना बंद कर दिया था मैंने. एंड मेरी 3 इंटर्नशिप्स एंड हुआ था. एक इंटर्नशिप के अंदर तो आई गॉट अ PPO ऑल्सो. तो आई सेल्फ टैग माई सेल्फ सेकेंड ईयर में गाइस. तो सेकेंड ईयर के अंदर आई गॉट द PPO, बट ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकता था क्योंकि कॉलेज डिग्री कंप्लीट करनी है. तो आई रिजेक्टेड द PPO एंड उसके बाद मैं पूरा फोकस फ्रीलांसिंग के ऊपर हो गया था. एंड मैं क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट में React.js इट्स अ टेक्नोलॉजी तुम यूज़ करते हो तो वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो वो मैं अपना एनहांस करने लग गया था टू होन अप स्किल इन दैट. तो अब एडवांस फ्रेमवर्क्स में सीखने लग गया था ताकि मैं हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स कर पाऊँ. तो अब मेरा काफ़ी ज़्यादा फोकस उसके अंदर हो गया था कि हाउ डू यू गो एट वेरी एडवांस्ड इनटू दैट. तो अब मेरा पूरा इंक्लाइन इसके अंदर था. एंड फ्रीलांसिंग के मैंने बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे एंड एट द सेम टाइम अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट ओनली. सो 2 months मेरा पूरे कम्प्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग. एंड एट द सेम टाइम कुछ तो मेरे दिमाग में क्यूरेट होना चालू हो गया था कि हाउ टू लेवरेज दिस फ्रीलांसिंग इनटू समथिंग ऑफ अ स्टार्टअप. So yeah, this was what I was doing in my summer. I remember having a conversation with Ishu in I think early 2022 or late 2021. ऐसे रात के 2-3 बज रहे थे और मैं उस टाइम ईशू का अनऑफिशियल रूममेट था क्योंकि ISMP विंग्स उस टाइम ऐसे सेपरेटेड थे, लेकिन सिंस लोग कभी भी आ रहे थे कैंपस में रिसोर्स कंस्ट्रेंट पे तो उनको कहीं भी रोका जा रहा था. तो मैं ईशू का रूममेट था एंड मैं ऐसे पूछ रहा था ईशू आगे क्या करना है यार. ईशू वॉज लाइक सुनोगे तो बताऊँ, मेरे पास एक आइडिया है. मैंने कहा बताओ. एंड उसने आइडिया बताया नहीं, बट उस टाइम ऐसा लगा था कि हाँ कुछ तो स्टार्टअप वार्टअप करने वाला इशू. अगेन ऐश्वे नाइस, हाथ भी मिला लेते हैं.
तो हाँ, आई थिंक तब से तुम्हारा कुछ तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट स्टार्ट हो गया था. एंड देन वी एंटर्ड आवर थर्ड ईयर, जहाँ पे अगेन लाइक आपने शायद ध्रुव के इंटरव्यू में भी सुना हो, इफ़ नॉट चेक इट आउट. वहाँ पे MSCs के साथ हमारी ग्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी ऑन सम वेरी काइंड ऑफ कोर्सेज. कैसा था उसमें एक्सपीरियंस? हाउ, मतलब अगेन एकेडमिक्स हमको कहीं ना कहीं संभालने पड़ते ही हैं, उसके साथ learning advanced frameworks in web development and completing internships, and then still you said you did not go for मतलब उतने फोकस के साथ you did not go for your third year internships, but still did that peer pressure ever creep in कि यार I have so many skills, what if I just apply and I'll get a very nice internship? तो या थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ऐसे मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम एबल टू ऐसे गिव अप माई कॉलेज फीस. सेम टाइम ये भी फीलिंग थी कि मैं कन्वेंशनल पाथ नहीं ले रहा हूँ, जिसमें इंटर्नशिप के लिए तुमको रेडी प्रिपेयर करना पड़ता है, DSA वगैरह क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं. मैं वो कन्वेंशनल पाथ फॉलो नहीं कर रहा, तो जैसे डीप डाउन एक फियर भी था कि जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी आगे, क्योंकि ये सेट पाथ है जिस पे लोग जस्ट दे गो ऑन एंड देन probably do something good, but I wanted to go somewhere unconventional. मैं उस साइड ही जा रहा था, तो अब ये डर तो था. तब स्टार्ट हुआ थर्ड ईयर, एंड आई रिमेंबर in January I started this venture Ashway, where बहुत स्टार्ट तो करा था विद अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स, विद लिमिटेड पीपल, एंड पहले मैं अकेला ही था, एंड उसके बाद पीपल केम इन, टीम बनती गई. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू स्टार्ट अ वेंचर, इट वाज अ वेरी बिग स्टेप फॉर मी, एज इन अ बिग स्टेप इन माई लाइफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं. एंड सिंस यू आर अ स्टूडेंट, तो तुमको अकेडमिक्स का भी ध्यान देना पड़ता है. एकेडमिक्स में ऐसा हुआ था, केमिस्ट्री के अंदर देर सा कोर्स करिकुलम के जो भी इनका इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि तुमको अपने कोर्स के साथ MSc के ग्रेडिंग भी साथ में होती है. तो हम BS केमिस्ट्री से हैं, तो 4 ईयर का हमारा होता है. बट जो ऑलरेडी अपने 3-4 साल बैचलर डिग्री करके आ रखे हैं, वो मास्टर्स के लिए आए हैं, सेम क्लास में बिठा दिया जाता है कि अब यू नीड टू कंप्लीट द कोर्स इन द सेम क्लास. और ग्रेडिंग वैसे सेपरेट नहीं होती कि मास्टर्स की सेपरेट एंड हमारी बैचलर की सेपरेट. वो बहुत प्रोफेसर को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कोई प्रोफेसर कन्विंस हो पाता है, कोई नहीं हो पाता. मोस्टली ग्रेडिंग सेम ही होती है एंड सेपरेट नहीं होती. तो अब दे हैव वास्ट नॉलेज, बट उनसे अगर पूछा जाए कि MSc वालों से अगर कोई पूछता तो कहते हैं कि हाँ हम तो एडवांस लेकर के आए हैं, तो हमें तो बहुत कुछ आता है. बट यहाँ की केमिस्ट्री थोड़ा सा एडवांस एंड थोड़ा सा आगे का है, तो हमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ने में. एंड जो ग्रेडिंग होती है बहुत डिज़ास्टर्स रहती है. यूजुअली ट्रेंड जो रहता है, मैं बताता हूँ ट्रेंड क्या रहता है. अगर क्लास लिस्ट निकली है विद द स्कोर्स लिस्ट, तो ऐसे टॉप 10 बच्चों के नाम एक भी BS नहीं होता है, हार्डली 1-2 BS का बच्चा होता है, बाकी पूरे MSc के बच्चे होते हैं. एंड जो लेट्स से एवरेज, जैसे 10 मार्क्स अगर एवरेज है ना, तो अपना BS का हाईएस्ट वो 10 होता है, और वो MSc का एवरेज रहता है. तो यही यूजुअली ट्रेंड फॉलो होता है. बट BS में भी अपने कुछ हैं जो ऐसे बहुत केमिस्ट्री के अंदर एंथुसियास्ट हैं, तो दे स्कोर वेल एंड कम्पीट वेल विद MSc. बट हमारे लिए जो कि डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. बट इससे जो लोग लेट्स से केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा नहीं करना चाहते, उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है. बट जो केमिस्ट्री के अंदर करना चाहते हैं, उनको तो अच्छा कंपटीशन मिलता है, एंड उनको भी ऐसे पुश मिलता है कि हाँ दे वांट टू लर्न मोर, एंड ग्रेड्स अच्छे लाने हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है उनको. बट अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, तो ये सब मैं हैंडल कर रहा था. तो समहाउ थर्ड ईयर के अंदर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि कोर्सेज भी हैं, एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड दिस ओन वेंचर, तो प्रॉब्लम्स ना हो. एंड प्रॉब्लम्स आई भी थी, प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई, प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं. तो प्रॉब्लम्स के साथ ये चीज़ करना was getting a little hectic. तो अब क्या, वो फर्स्ट 4 months were completely ऐसे exhausting for me, क्योंकि फर्स्ट 4 months के अंदर you just burn and I was just not getting any output from the startup that I was working on. तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ नहीं मिल रहा था, बस I was just burning my efforts, my time, everything I was just burning in. तो कोई आउटपुट नहीं मिलता, तो यू जस्ट गेट सम काइंड ऑफ सेल्फ डाउट कि आर यू फॉलोइंग द राइट पाथ, क्योंकि तुमने अनकन्वेंशनल वे लिया है, तो ठीक है भी या नहीं है. तो डाउट तो आता है, बहुत डाउट आता है. बट फॉर्चुनेटली वो आफ्टर द 4 months वो अच्छा रहा, एंड वी स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू. तो काफ़ी अच्छा था थर्ड ईयर के अंदर. उसके बाद मैं वेब कन्वीनर से यू प्रमोट टू वेब मैनेजर. तो अब सिंस पहले मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैं इनसाइट में घुस गया था. बट अब मेरे को आइडिया लगा कि हाँ मेरे को टेक्निकल के अंदर जाना है. तो आई एक्सप्लोर्ड कि इंस्टीट्यूट टेक्निकल काउंसिल कुछ होती है, तो इंस्टीट्यूट टेक्निकल काउंसिल के अंदर आई अप्लाइड फॉर वेब मैनेजर. तो एंड आई बिकेम वेब मैनेजर ऑल्सो.
तो वेब मैनेजर जब बना था उसके बाद यू गेट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल द वेबसाइट्स ऑफ ITC। तो बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल बॉडीज़ हैं एंड इंस्टीट्यूट बॉडीज़ जो कि टेक्निकल रिलेटेड है, तो इन सब की वेबसाइट्स वगैरह संभालना, एट द सेम टाइम जो न्यू इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं बाय द काउंसिल, वो इनिशिएटिव्स की वेबसाइट्स बनाना, पोर्टल्स बनाना, एप्लीकेशन बनाना, वो सारा काम वेब मैनेजर संभालता है। एंड मेरे साथ एक को मैनेजर भी था, वो रियली हेल्प मी। तो हम दोनों ने साथ में टेन्योर कंप्लीट करा था एंड वी क्रिएटेड रफली अराउंड 10 एप्लीकेशंस, तो विच वी ओवर डिड बिकॉज नॉर्मली कितना होता है, जैसे 2, 3, 4 एप्लीकेशन बन पाते हैं, बट हमने आउटडन करा था उनको एंड वी क्रिएट 10 एप्लीकेशंस फॉर द काउंसिल। एंड वो क्योंकि सिंस मेरा इंटरेस्ट था वेब के अंदर एंड आई रियली इन्जॉयड डूइंग वेब डेवलपमेंट, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, इस वजह से आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो थर्ड ईयर रफली यहीं पे ऐसे ही एंड हुआ था, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एशवे, जस्ट व्हेन आई वाज अप्रोचिंग द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि एशवे अच्छा चल रहा था तो मेरा सारा फोकस उसके ऊपर चला गया था। एंड थर्ड ईयर इंटर्नशिप भी मैंने छोड़ दी थी, तो इस वजह से, क्योंकि मैं पूरा फोकस अपने इस वेंचर पे डालना था, तो ये जब यू लीव इंटर्नशिप जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो देयर इज़ दिस थिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, इफ़ यू गेट द थर्ड ईयर इंटर्नशिप तो तुम्हारा बहुत सिक्योर हो जाता है कि रेज्यूमे के अंदर यू गेट टू पुट इंटर्नशिप, एंड तुम्हारे प्लेसमेंट काइंड ऑफ थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ, दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग इन द थर्ड ईयर एज एन इंटर्नशिप। तो वो नहीं था मेरे रेज्यूमे में, बट एट द सेम टाइम दिस वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क बिकॉज मेरे पास 3 इंटर्नशिप्स ऑलरेडी थी जो कि सेकेंड ईयर में मैंने कंप्लीट करी थी, तो दैट वाज सम काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। तो मेरे पास रेज्यूमे में पुट करने के लिए चीज़ें थी, तो एंड अबव दैट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी थे, तो आई वाज नॉट दैट फियर्ड अबाउट द इंटर्नशिप सीजन। तो समर्स के अंदर तो मेरा पूरा ध्यान अपना इस पे घिसा था, एशवे के ऊपर, एंड विच अल्टीमेटली लेड टू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। बट अकेडमिक से प्रॉब्लम हो गया था, वो आई सॉर्टेड आउट इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स, बट हाँ, दैट्स हाउ आई मैनेज्ड एंड रैप्ड अप माई थर्ड ईयर।